Hello student, I am Neha Miglani. Today I am going to start the topic of elasticity of supply. Elasticity of supply as similar to the elasticity of demand. So in demand, elasticity of demand, we will discuss how the elasticity of the demand has been measured and what are the types of the elasticity. That is the price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and income elasticity of demand. Please go through my previous video of the elasticity of demand. You can easily understand the elasticity of supply. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So let's start. What is the elasticity of supply? The law of supply indicates the direction of change. If the price goes up, the supply will increase. But how much the supply will rise in response to an increase in price cannot be known from the law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या चीज़ देखी है कि सप्लाई की डायरेक्शन कैसी रहेगी, कौन सी डायरेक्शन में वो जाएंगे, कि स्लोपिंग अपवर्ड कैसे होंगे. हमने ये चीज़ देखी है, प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम होगी सप्लाई कम होगी. बट कितनी अमाउंट तक ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा सप्लाई में ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस इज नॉट डिस्कस्ड अंडर द लॉ ऑफ द सप्लाई. वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द elasticity of supply. So to quantify such changes we require the concept of elasticity of supply. इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि elasticity of supply क्या है, जो ये चीज़ मेज़र करता है कि कितनी एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी जो है सप्लाइड चेंज करेगी एज रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइसेस में चेंज आने से सप्लाई में कितने लेवल तक चेंज आता है, कितने परसेंटेज चेंज आता है, वो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में. जैसे कि प्राइसेस में 10% का चेंज आ रहा है तो सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आएगा. प्राइसेस हमारे 100 रुपीज़ थी, प्राइसेस हमारी बढ़ के 110 रुपीज़ हो गई, बट सप्लाई हमारी जो थी वो 10 क्वांटिटी की थी, तो सप्लाई हमारी कितनी क्वांटिटी तक हम बढ़ाएंगे, 20% तक बढ़ाएंगे या 15% तक बढ़ाएंगे या फिर 30% तक बढ़ेगी. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि प्राइसेस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में कितने लेवल तक का चेंज आता है, वो हम किसके थ्रू डिस्कस करेंगे, एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू. So the elasticity of supply measures the degree of the responsiveness of the quantity supplied to change in own prices of the commodity. हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ये चीज़ मेज़र करती है कि कितने डिग्री लेवल तक सप्लाइड जो है वो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द कमोडिटी प्राइस इन द कमोडिटी. इट आल्सो डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस. हम इसमें सप्लाई कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज मेथड हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज़ करते थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी वही परसेंटेज मेथड यूज़ किया जाता है कि change in the quantity supplied divided by percentage change in the prices. It can be calculated by using the formula elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in prices. We can also symbolically it can be explained with the help of this thing. If you not go through my previous video of elasticity of demand, I can also give some view about how this formula is formed. Elasticity of
सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम मेज़र करते हैं ES के साथ. S डिनोट फॉर सप्लाई एंड E डिनोट फॉर इलास्टिसिटी. सो इट कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फॉर्मूला डिस्कस किया है कि माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस. बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमारा क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लेते हैं. माइनस सिंबल डिनोट फॉर इन्वर्स रिलेशन. जब किसी प्रोडक्ट का एक दूसरे के फैक्टर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन चलता है तब हम माइनस साइन लेते हैं. बट अभी जो है हमारा माइनस साइन हम इसमें इग्नोर करके चलेंगे. सो इस फॉर्मूला इज परसेंटेज change in supply, quantity supply divided by percentage change in prices. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को Q1 माइनस Q क्वांटिटी फॉर द सप्लाई divided by Q, P1 minus P divided by P. It can also say delta Q upon Q, delta P upon P. We can also write this delta Q upon Q multiplied by P upon delta P, which can also taken as P upon Q, delta Q upon delta P. This is our formula. Delta denote for change, ठीक है, and Q1 denote for new supply and Q denote for previous supply. P1 denote for new price and P denote for old prices. ठीक है. So this is all about our formula. इसके types discuss करेंगे. So there are 5 types of elasticity of supply. Elastic supply. इलास्टिक सप्लाई को हम कहते हैं ES greater than 1, which also say that greater than unitary elastic supply. Next is inelastic supply. Inelastic supply is set for less than unitary elastic supply, which is denoted as ES less than 1. Then unit elastic of supply, which is denoted as ES is equal to 1. Then perfectly elastic supply, ES is equal to infinity, and perfectly inelastic supply, ES is equal to 0. देखो हर चीज़ों में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है. इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है. इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज, कि चेंज आ रहा है. इनइलास्टिक का मतलब क्या है, नो चेंज या फिर कम चेंज, नो चेंज या फिर लेस चेंज. ठीक है, जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, लाइव वीडियो करूंगी, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे ये चीज़ें. सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास 5 टाइप्स है इलास्टिक डिग्री साइंस की. ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट डिग्री, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली मतलब प्योर, मतलब सप्लाई चेंज होती रहती है. इलास्टिक मतलब चेंज, सप्लाई हमारी चेंज हो रही है. ठीक है, इसमें जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, पी है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है. ठीक है, ये हमारा एस विच शो दैट ई एस इज इक्वल टू 0. ठीक है, द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सप्लाई कर्व इज दैट अनलिमिटेड क्वांटिटी हम ऑफर्ड करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे. ठीक है, हमारे प्राइसेस में नहीं चेंज आते हैं, बट हमारे सप्लाई में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अवर लाइव वीडियो. परफेक्टली मतलब एब्सोल्यूट, इलास्टिक मतलब चेंज सप्लाई, विच शो दैट ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. देखो मैंने ये चीज़ें करने से पहले मैं ये चीज़ें आपको फिर से समझा देती हूँ. इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है. क्वेश्चन यहीं से कन्फ्यूज़न आती है हमें जब हम एग्ज़ाम देते हैं. इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज, इस चीज़ को समझो. इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज, या फिर चेंज आ रहा है, लेस चेंज. ठीक है, इसमें क्या है, चेंज या फिर मोर चेंज. मतलब एक फैक्टर या प्राइसेस में चेंज आने की वजह से सप्लाई या डिमांड में चेंज आ रहा है. इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, सप्लाई प्राइसेस में के बढ़ने या कम होने से आपकी डिमांड या सप्लाई में नो चेंज आए, या फिर आए बट चेंज आए बट लेस चेंज आए, उसको हम इनइलास्टिक कहते हैं. अब हमारे पास कौन सा है, परफेक्टली मतलब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट
चेंज आ रहा है सप्लाई में, विच इज डिनोटेड है ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे प्राइसेस होते हैं, यहाँ पे हम डिमांड लेते थे, यहाँ पे अब हम सप्लाई लेंगे, ठीक है, उसकी भी क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस आपकी चेंज कर रही है, बट आप सेम प्राइस लेवल पे सप्लाई कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो और ज़्यादा चेंज ला रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ इन्फिनिटी, क्योंकि सप्लाई में चेंज आ रहा है, दूसरे फैक्टर में चेंज आए चाहे ना आए। और सेकेंड, परफेक्टली इनएलास्टिक। परफेक्टली मतलब बिल्कुल परफेक्ट वे से इनएलास्टिक, नो चेंज दिखाए सप्लाई में। सो दिस कर्व डिस्क्राइब दैट वॉट एवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी प्राइसेस चल रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, कम हो रही है, बट आपकी सप्लाई में जीरो चेंज आए, आपकी मतलब सप्लाई बिल्कुल जीरो चेंज दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई। दिस ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। मैं इसको एक लाइव वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्कस कर रहे हैं परफेक्टली मतलब परफेक्ट वे से इनएलास्टिक। इनएलास्टिक मैंने आपको पहले ही बताया है कि नो चेंज या लेस चेंज, किसमें, सप्लाई में, ठीक है। इसको हम ई एस इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चलेंगे। ई एस इज इक्वल टू ज़ीरो में क्या है, आपकी जो है सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। प्राइसेस आपके वट एवर रहें, प्राइसेस आपके बढ़े कम हो, इट डजेंट मैटर, प्राइसेस आपके बढ़ रही हैं, प्राइसेस आपकी कम हो रही हैं, बट आपका सप्लाई का जो है नो चेंज दिखा रहा है। इसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे, ई एस इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ। थर्ड हमारी टाइप आ जाती है अब यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक्स ऑफ सप्लाई में क्या है, यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब वन, मतलब जितने लेवल तक आपके प्राइसेस में चेंज आ रहा है उतने ही सेम लेवल पे आपकी सप्लाई में चेंज आएगा, ठीक है। सो इफ द प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम मैग्नीट्यूड देन वी हैव यूनिट इलास्टिक ऑफ सप्लाई। मतलब आपके प्राइसेस में अगर 10% का चेंज आएगा, आपकी क्वांटिटी में भी सिर्फ 10% का ही चेंज आता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द लाइव वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई विच इज़ डिनोटेड एज ई एस इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाइस, ये आपकी प्राइस, ये आपकी यहाँ पे क्वांटिटी। आपकी प्राइसेस इतनी थी, आपने सप्लाई इतनी रखी, प्राइसेस आपकी 10% लेवल तक बढ़ी है और आपने भी सप्लाई भी जो है 10% लेवल तक इंक्रीज़ कर दी, सेम लेवल पे इंक्रीमेंट हुआ है दोनों में। तो ये हमारा सप्लाई कर्व विच इज़ डिनोटेड एज ई एस इज इक्वल टू 1। वी शो दैट 10% लेवल तक प्राइसेस बढ़ी हैं तो सेम लेवल पे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मतलब चेंज होना, ठीक है। सो सप्लाई हमारी प्राइसेस बढ़ रही है तो सप्लाई भी हमारी सेम लेवल तक बढ़ेगी, इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब फोर्थ टाइप that is relatively elastic supply which is denoted as ES greater than 1। ES greater than 1 का मतलब क्या है, आपकी प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आता है बट आप सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं relative elastic supply। Supply is said to be elastic when a given percentage change in prices lead to larger change in supplied। आपके प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आया बट आपने आपकी सप्लाई में बहुत सारा चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ES greater than 1। So it is also has been explained with the help of the diagram and we can also explain in our live video also। Relative elastic supply, इसमें क्या होता है, आपकी जो प्राइसेस है वो आपकी थोड़ा सा चेंज दिखा रही हैं। देखो प्राइसेस आपकी इतनी थी, सप्लाई आपकी इतनी थी, आपकी प्राइसेस में सिर्फ 5% लेवल तक का चेंज आया बट आपकी सप्लाई में 20% तक का चेंज आ जाता है। मतलब आपकी प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आया बट आपने सप्लाई को बहुत सारा चेंज कर दिया, तो वो आपकी क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई विच इज डिनोटेड एज ES greater than 1। Our last topic is
Last degree is relatively inelastic supply, which is denoted as ES less than 1. इसमें क्या होता है, supply is changed less, but आपकी जो प्राइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है. आपकी प्राइसेस में बहुत सारा चेंज आने के कारण भी आपकी जो सप्लाई है वो माइनर सा चेंज दिखा रही है. उसको हम क्या बोलते हैं, इन एलास्टिक सप्लाई कर्व, विच कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अवर लाइव वीडियो ऑल्सो. अब हम डिस्कस करेंगे relatively inelastic supply. inelastic मतलब थोड़ा सा चेंज या लेस चेंज या फिर नो चेंज. प्राइसेस सप्लाई, आपकी प्राइसेस इतनी थी, आपने इतनी सप्लाई रखी, प्राइसेस में आपका बहुत सारा चेंज आया, बट आपकी सप्लाई में सिर्फ माइनर सा चेंज आया. ऐसा गोल्ड एंड ज्वेलरी के केसेस में होता है कि अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है या कम होती है, बट आपकी सप्लाई लिमिटेड सी ही बढ़ती है. ठीक है, तो ये होती है हमारी रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई लेस देन 1. ठीक है, हमने बहुत अभी तक डिस्कस किए हैं हमारी जो है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई को डिस्कस किया है, रिलेटिवली इनएलास्टिक को किया है, यूनिटरी को किया है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है. तो ये सब बहुत सारी गुड्स में इफेक्ट डालती हैं. जो गुड्स में इफेक्ट डालती है वो मैंने डिस्कस की हुई है डिमांड में. ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस डिमांड टॉपिक्स. यू कैन ऑल्सो बेटर अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम ऑल्सो. This is all about our today topic. We have discussed the degrees of elasticity of supply. So there are 5 degrees of elasticity of supply: elastic supply, inelastic supply, unitary elastic supply, perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply. I hope you will all understand what are these types of elasticity. In our next video I am going to discuss over the measurement of the elasticity of supply. Thank you so much.